اور آج ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا، اور خداوند کا کلام بہت ہی عزت والا، اثر کرنے والا، بند اور گودے گودے میں اترنے والا کلام ہم سب کے لیے ابدی خوشی لے کر آتا ہے. آمین. ابدی جیون لے کر آتا ہے، سچی خوشی لے کر آتا ہے، اور وہ ابدی جیون اور سچی خوشی خداوند یسوع مسیح خود ہی ہے. آمین. اپنے لوگوں میں آتا ہے یہ سب کچھ دینے کے لیے، ابدی جیون دینے کے لیے آتا ہے. ہم سب نے یہ گیت گایا، میں اس لیے آپ کا ایمان بڑھا رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پر موجود ہے. آمین. یہاں پر موجود ہے. ہم نے جہاں سے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا اس ورس کو پڑھتے ہیں، پھر ہم ایک چھوٹی سی دعا کریں گے اور کلام میں آگے چلیں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے جو چھوڑا تھا لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، ڈاکٹر لوکا نے جو انجیلی بیان جو لکھا ہے اس کے لیے لوکا 2 باب جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. لاسٹ ٹائم ہم سیکھ رہے تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح 12 سال کے جب تھے تو وہ ہیکل میں رہ گئے. جب اس کے ماں باپ مریم اور یوسف یروشلم سالانہ عید منانے کے لیے آئے تھے، تو خداوند یسوع مسیح جو ایک 12 سال کے اس وقت ان کی عمر تھی، تو وہ ہیکل میں رہ گئے، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے مریم اور یوسف وہاں تک پہنچے، اور بڑے کڑتے ہوئے، اور اس کو بھی کہا کہ ہم تجھے کڑتے ہوئے ڈھونڈنے آئے ہیں. آگے اس نے خداوند یسوع مسیح کا جواب، اگر لوکا 2 باب اور اس کی 49 ورس میں ہم پڑھیں تو لکھا ہے، اس نے ان سے کہا تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے. ٹھیک ہے، ہم نے سب کچھ سنا تھا، سیکھا تھا، بہت ساری باتیں سیکھی لاسٹ سنڈے کو. آج یہ ٹاپک جو 2 ہفتے سے چل رہا ہے کہ آپ کیا نہیں پاتے جب چرچ نہیں آتے، تو آج اس کا تیسرا حصہ ہے، اور جہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑا تھا وہیں سے اس کو آج شروع کیا ہے ہم نے. اور یہ ورس ہم نے لاسٹ ٹائم نہیں پڑھی تھی، تو اس لیے میں اس کو آج یہاں سے شروع کر رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے؟ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے؟ مگر جو بات اس نے ان سے کہی اسے وہ نہ سمجھے. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح جو ہم سے باتیں کہتا ہے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے کلام میں جو باتیں لکھی ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ بات بھی جو خداوند یسوع مسیح نے مریم اور یوسف سے کہی کہ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں تھی کہ مجھے اپنے باپ کے گھر میں ہونا ضرور تھا، ضرور ہے. یہ بات ان کو سمجھ نہ آئی، اور یہ بات بہت سے لوگوں کو آج سمجھ نہیں آ رہی اور معلوم نہیں کب آئے گی. مگر خداوند سے دعا کرتے ہیں کلیسیائی طور پر، میں ایک اس کا خادم ہوتے ہوئے بھی، میں اپنی کلیسیا کے ساتھ، کلیسیا کے اور دوسرے خادموں کے ساتھ، ایلڈرز کے ساتھ مل کر اس بات کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ خداوند یسوع مسیح کا اس کے گھر میں ہونا، اس کے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے، اور اس کے ساتھ ہم سب کو اس کے باپ کے گھر میں ہونا ضرور ہے، کیونکہ اس کے باپ کا گھر دعا کا گھر ہے. ہاللویا. خداوند پیارے آسمانی باپ،
हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं आज इस शाम के वक्त में। खुदावंद आज तू हमारी मदद करना कि हम खुदावंद तेरे कलाम की लिखी हुई बातें, तेरे मुंह से निकली हुई बातें, खुदावंद जो कुछ हम पढ़ते सुनते सीखते हैं खुदावंद उनको समझने की कोशिश करें, जैसा कि खुदावंद तूने वो 2000 साल पहले मरियम और यूसुफ को भी यह कह दिया खुदावंद के मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर है। खुदावंद आज भी और तूने जैसा तेरे कलाम में लिखा है कि जो बात तूने कही उनको वो ये बात समझ ना आई। खुदावंद यीशु आज हम अपने अपने कानों को, सोचों को, ख्यालों को खुदावंद हम तेरे आगे सरेंडर करते हैं। हमारे कानों को छू, हमारी सोचों को छू, हमारे ख्यालों को छू। खुदावंद हम हर किस्म की उलझाने वाले ख्यालात को बांधते और हुक्म देते यीशु के आगे झुक जाएं और खुदावंद सारे सबके कान खुल जाएं। सोशल मीडिया पर इस हैकल में, तेरे इस घर में खुदावंद तेरे हमारे आसमानी बाप के घर में जितने लोग जमा हैं या कहीं भी घर में, गाड़ी में खुदावंद अपनी जॉब पर या जहां कहीं भी खुदावंद तेरे कलाम को सुनते हैं, आज हमारे कान खोल और आज हमारी सोचों को खोल, हमारे जहनों को खोल ताकि जो बातें तू कहता है वो हमारी समझ में आ जाएं, ताकि खुदावंदा तू अपने लोगों में आया है अब्दी जीवन देने को, सच्ची खुशी देने को। तूने अपना तख्त यहां पर लगाया है। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावंद कि तू यहां मौजूद है, तू मौजूद है खुदावंदा। खुदावंद तेरा पाकरू ये गवाही देता है कि तू यहां मौजूद है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तेरे लोग सब आज बरकत पाए खुदावंद, तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे मेरे बाप के घर में होना जरूर था। और लूका रसूल इस बात को लिखता है 50 आयत में, लूका 2 बाब उसकी 50 आयत हमने पढ़ी कि वो उनके साथ मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे। जो बात उसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने, जो एक छोटा बच्चा 12 साल की उम्र थी उस वक्त, उसके बाद की जो 33 साल तक की जिंदगी है उसका हमारे पास हिस्ट्री नहीं है कुछ भी इंजीलों में, मगर उस वक्त ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ कहा, लूका रसूल लिखता है कि मगर जो बात उसने उनसे कही उसे वो ना समझे। तो अजीजों, ये 2 हफ्ते से जो पैगाम है या हर संडे को जो पैगाम है, खुदावंद यीशु मसीह की जो बातें हैं वो कोई समझे ना समझे, वो अपने लोगों में मौजूद होता है अपने वादे के मुताबिक। उसके कलाम में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा, यीशु की अपने मुंह की बातें हैं, मैं वहां मौजूद हूं। तो हमारा ईमान है कि जब हम उसके घर में आए हैं, जैसे हमने गीत भी गाया है, तो खुदावंद यीशु मसीह यहां पर मौजूद है हमें अब्दी जीवन देने के लिए, हमें सच्ची खुशी देने के लिए। उसका तख्त यहां लगा है क्योंकि कलाम में यह भी लिखा है कि वो अपने लोगों की सताइश पर तख्त नशीन होता है। हालेलुया, उसका तख्त लग जाता है। तो हम ये सीरीज जो हम ये कलाम की बातें सीख रहे हैं, ये नाराजगी के तौर पर नहीं है, ये कलाम की बातें हैं। हमें एजुकेट होना जरूरी है। पास्टर का काम है दुनिया को, सारी कलीसिया को और लोग जो मसीह कहलाते हैं खासकर उन लोगों को, क्योंकि आसमानी बाप तो उन्हीं का ही है ना, जो मसीह को कबूल करते, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं, आमीन। दूसरों का वो बाप नहीं है, दूसरों के लिए खुदा है। बहुत से लोग और बाकी और लोग, बहुत से खुदा भी इस दुनिया में है, मगर कुछ जो 3 मोनोथियस्ट कौमें हैं वो खुदा को बाप नहीं कहती। मसीहों के लिए ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि वो हमारा आसमानी बाप है। हालेलुया, वो हमारा आसमानी बाप है और उसका जो घर है, उसकी जो हैकल है, जैसा उसने सिस्टम बनाया है, जरूर है कि हम उसमें इबादत करें आके, और वो अपने लोगों में
आ मौजूद होता है। आमीन। खुदावंद यीशु अपने लोगों में आ मौजूद होता है क्योंकि उसने ये वादा किया है, उसने ये उसका ये वादा है कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं वहां पर हाजिर हूं। और इस महीने 10 तारीख को इस वीक में ईद सऊद है। बहुत से चर्चेस मनाते हैं, ज्यादातर रोमन कैथोलिक चर्च उसको सेलिब्रेट करते हैं और दूसरे चर्चेस भी कुछ हैं जो सेलिब्रेट करते हैं ईद सऊद, डे ऑफ असेंशन, जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए। वो थर्सडे को 10 तारीख को है। उसके बाद 10 दिन के बाद ईद पेंतिकोस्त आती है। आमीन। जो पहले फलों की ईद है ईद पेंतिकोस्त, और वो 10 दिन के बाद है, जो कि उसके बाद का जो संडे है उस पे वो ईद आती है। तो वो उस दिन खुदा का पाक रूह जो है वो नाजिल होता है। तो वो 10 दिन है जिसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, अगले चंद हफ्तों में देखेंगे कि किस तरीके से जो शागिर्द थे या 120 की जमात थी वो दुआ में एक जगह पर जमा थे और 10 दिन तक मतवातर दुआ कर रहे थे, और पेंतिकोस्त के दिन पाक रूह जो है उन पर नाजिल हुआ था। आज जो बात देखते हैं, हमने ये पिछली जो हमने लास्ट संडे को सीखी थी उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा आज, मगर ये टाइटल जरूर आज फिर आपको याद करना जरूरी है। लोगों से भी शेयर करें, आप क्या नहीं पाते जब चर्च नहीं आते, व्हाट यू मिस व्हेन यू मिस द चर्च। आमीन। और एक वेस्ट इंडियन पास्टर अमार नाम है उनका, वो इसी टॉपिक पे मैसेज दे रहे थे एक दिन। तो कहने लगे कि हमारे वहां पर ना एक मिसाल दी जाती है, हमारे मुल्कों में भी हम देखें और जहां पर भी वो जो सड़क के किनारे दरख्त लगाए जाते हैं ना, तो वो लगाए जा रहे थे, दरख्त लग रहे थे, एक यहां पर लगा, कुछ थोड़ी दूर लगा, कुछ थोड़ी दूर लगा। तो 3 लोगों की ड्यूटी थी। एक आदमी क्या करता है, एक आदमी के हाथ में बेलचा होता है और वो गड़ा खोदता है, गड़ा खोलता है, वहां पे होल करता है, मिट्टी निकालता है, गड़ा खोदता है कि वहां पर एक दरख्त लगाया जाएगा। तो उसके पीछे एक और आदमी होता है, वो आता है और उसको वो गड़े को भर देता है। तो अगला वाला जो आदमी है वो आगे जाके फिर गड़ा खोदता है और वो आगे चल के तीसरा गड़ा खोदता है, और पीछे पीछे जो बेलचा लेकर आ रहा है ना, वो क्या करता है, वो उस गड़ा जो वो होल उसने बनाया है उसको वो भर देता है। दोनों ऐसे चलते। तो एक टूरिस्ट था, टूरिस्ट ने आके पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? एक खोदता है गड़ा और दूसरा आके वो उसको भर के तो आगे चलता जा, तुम ऐसे ही करते जा रहे हो। जब उसने देखा ना कोई थोड़ी देर तक 4-5 दफा वो ऐसे कर चुके, उसने आके क्यूरियसली पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहने लगा कि हमारी ये जॉब है, हम ये अपनी जॉब कर रहे हैं, हमारी 3 की जॉब लगी थी ये कि तुमने आज फलानी सड़क पे तुमने दरख्त लगाने हैं राह के किनारे। तो कहने लगे वो जो प्लांट करने वाला ना, दरख्त प्लांट करने वाला जो है वो आज छुट्टी कर गया, पता नहीं वो आया ही नहीं। तो हम दोनों अपना काम कर रहे हैं, मैं गड़ा खोदता हूं और इसका काम है वो गड़ा भरना। तो वो भरता जा रहा है, वो जो बीच वाला जिसने दरख्त लगाना था ना वो आया ही नहीं है। तो हमारी जॉब है, हम तो अपनी जॉब कर रहे हैं। तो वो दरख्त लगाने वाला आया ही नहीं है। तो ये मिसाल पास सब दे रहे थे। तो हम कभी कभी ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम खुदा उनके घर में आते हैं, सब जिनका जो काम है वो करते हैं, और जो नहीं आते उनका काम रह जाता है। हो सकता है किसी का काम दरख्त लगाना हो, किसी का काम कुछ हो, किसी का काम कुछ हो। तो जरूर है कि जिसकी जो जिम्मेदारियां हैं वो घर में आए और वो अपना काम करे। जैसे उन लोगों उनकी तरह नहीं, वो अपना जरूर काम कर रहे हैं। वो एक खोद रहा है, गड़ा खोद रहा है, जिसने भरना था वो मिट्टी भर के चला जाता, आगे कर दे जाते। जो बीच वाला था जिसने प्लांट करना था दरख्त, वो ना वो दरख्त लेकर आया ना वो दरख्त लगाए गए। वो इसी तरीके से गड्ढे खोदते, वो कह रहे हमारी तो जॉब है, मैं हुक्म मिला हमने ये करना है, तो वो करते हुए चल गए। एनीवे, आगे आज चलते हैं हम
यूहन्ना की इंजील उसका 20 बाब, जॉन चैप्टर 20 वर्स 19 से देखेंगे। यहां से मैं आपके लिए सब ने निकाल लें तो इस हवाले को पढ़ते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। इसमें से इसके मैं बताता हूं, तकरीबन 12 पॉइंट हैं, इसमें से हम देखेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 20 बाब 19 से 29 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहां पर यूं लिखा है खुदा के कलाम में, फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और यह कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावन को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूल कुदस लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके गुनाह उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तुमा, जिसे तवाम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावन को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज यकीन ना करूंगा। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तुमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तुमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तुमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देख कर ईमान लाया है। मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो। यहां पर खुदा यीशु मसीह के अल्फाज 3 दफा वो आकर वो कहते हैं, तुम पर सलामती हो। आमीन, सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो। खुदावन मैं इसीलिए मैंने खुदावन यीशु मसीह से ये बात सीखी है कि मैं हमेशा इस बात की प्रैक्टिस करता हूं कि मैं अपना सलाम तो लोगों तक पहुंचाऊं, मगर उससे बेहतर है कि मैं खुदावन यीशु जब मौजूद है तो मैं वो क्योंकि यहाँ पर मौजूद है, वो जब जहां कहीं पे भी आ मौजूद होता है, वो सबकी जिनके दरमियान में वो आ जाता है उनकी वो सलामती चाहता है, उनको वो सलामती बख्शता है। इसीलिए ऑलवेज मैं भी पुलपिट से जब आकर खड़ा होता हूं, ऑलवेज मैं यीशु के नाम में उसकी सलामती अपनी कांग्रीगेशन के लिए, अपने सब सुनने वालों के लिए, अपने लोगों के लिए, सबके लिए उसकी सलामती मांगा करता हूं। आमीन। मैं इसलिए ये ऑलवेज मैं ये प्रैक्टिस करता हूं कि खुदावन यीशु की सलामती आप सब पर हो। आमीन, खुदावन का शुक्र हो इस बात के लिए। हम यहां पर देखते हैं कि पहला पॉइंट जो हमने स्क्रिप्चर पढ़ा है, पहला पॉइंट यह है, हफ्ते का पहला दिन। पहली आयत में देखें, 19वीं आयत जब हमने पढ़ी है तो उसमें यह लिखा है, फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। इस पहली आयत में ही 3-4 पॉइंट हैं, उनको पहले हम देखते हैं। पहली बात कि वो हफ्ते का पहला दिन था।
और वो कौन सा दिन था? रेजरेक्शन डे, जिस दिन खुदावन यीशु मसीह जी उठी थे। ये उसी दिन का वाक्य है। हालेलुया, ये उसी दिन का वाक्य है। ये रेजरेक्शन डे का वाक्य है। ये जिस दिन हम सब मसीह लोग ईस्टर मनाते हैं, रेजरेक्शन डे मनाते हैं, खुदावन यीशु मसीह के जी उठने का दिन मनाते हैं, उसी दिन शाम की बात है। और वो संडे का दिन है, वो हफ्ते का पहला दिन है। हालेलुया, हफ्ते का पहला दिन है। कलीसिया के अगर हम अमाल की किताब में भी पढ़ें तो आगे हमें ये वाक़यात मिलते हैं कि न्यू टेस्टामेंट चर्च जो है वो हफ्ते के पहले दिन जमा हुआ करते थे, क्योंकि वो सबत का दिन, उस वक्त जो सबत का दिन था, जो 7वां दिन कहलाता है, उसको वो सैटरडे का दिन, वो उसको इब्रानी जुबान में भी सबत बोलते हैं। हालांकि सबत के मतलब कुछ और है। सबत का मतलब आराम है, आराम का दिन है। वो कोई भी 7वां दिन हो सकता है। तो मसीहों ने जब कलीसिया को खुदा उनके पाक रूह ने इस बात की समझ दी, तो उन्होंने फिर हफ्ते के जो सबत का दिन था उस दिन वो आराम किया करते थे। फिर भी वो उन्होंने पहला दिन जो हफ्ते का चुना, उस दिन वो इबादत करनी शुरू कर दी, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने खुद कहा था कि मैं जो इंसान है, आदमी, वो सबत के दिन के लिए नहीं, सबत का दिन के लिए नहीं बना, सबत के दिन के लिए बना। वो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सबत का मालिक हूं। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह सबत के मालिक हैं, तो हमारी जिंदगी में कोई सा भी दिन सबत का दिन हो सकता है। सबत का मतलब 7वां दिन है, 7वां दिन है। मगर लिटरली जो लैंग्वेज के हिसाब से, जुबान के हिसाब से सबत का दिन है, इब्रानी में और अरबी में भी और अरामिक में भी, अरामी जुबान में भी और फिनिके की जुबान में भी, उसमें सबत ही बोलते हैं उसको, सैटरडे के दिन को। तो उस दिन यहूदी लोग इबादत किया करते थे। मगर ये जब न्यू टेस्टामेंट चर्च ने पहले दिन जमा होना शुरू किया, और स्पेशली उस दिन खुदावंद यीशु मसीह जी उठे थे, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का वो रेजरेक्शन डे है। लिखा है कि उसी दिन शाम को, उसी दिन शाम के वक्त, वो हफ्ते का पहला दिन जो था, सबत या सैटरडे के दिन के बाद हफ्ते का पहला दिन जो शुरू हुआ था, जो मसीही कलीसिया के बुजुर्गों ने ये शुरू किया कि हम, और इसका एक अलग टॉपिक है जिससे हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं कि वो सबत का दिन, जो इतवार का दिन है या संडे का दिन है, ये कैसे क्रिश्चियन सबत बन गया, वो एक अलग कहानी है, अलग वो एक टॉपिक है, उस पर नहीं जाएंगे। मगर मैं आपको एक चीज, कुछ चीजें इसमें से बताना चाहता हूं, बड़ी पावरफुल चीजें हैं। मैंने ये जो इस कलाम को कि मैंने तैयारी तो लास्ट वीक हफ्ते के शुरू में ही की थी, मगर आज सुबह मैं दुआ कर रहा था तो खुदावंद ने मुझे एक और स्क्रिप्चर दिया जो बड़ा पावरफुल है, बड़ा ही पावरफुल स्क्रिप्चर है। यहां पर नहीं लिखा हुआ, मगर वो उसको मैं आपको बताता हूं कि मेरे मुझे उसका पता था, मुझे अचानक खुदावंद ने वो याद कराया। वो हवाला अहबार की किताब में चलते हैं, उसका 23 बाब, लिविटिकस बुक ऑफ लिविटिकस, तौरेत में, तौरेत की किताबों में तीसरी किताब जो है, जो बाइबल में पहली 5 किताबों में से पहली जो तीसरी किताब है, 23 बाब, जिसको तौरेत भी बोलते हैं, तौरा, 23 बाब, हफ्ते का पहला दिन जो है, मसीही कौम के लिए या न्यू टेस्टामेंट चर्च या नए अहदनामे की कलीसिया ने, जिनको पाकरू ने गाइड किया इसी तरीके से कि वो इबादत का दिन भी उसको ठहराएं, असल में एक बड़ा ही एक रेवलेशन है जो मुझे भी खुदावंद ने दिया। आज मैं आपके साथ भी वो शेयर करता हूं। सबत का दिन जो है वो भी आराम का दिन, 7वां दिन या सैटरडे, जिस तरीके से यहूदी कौम उसको सेलिब्रेट करती है। अगर हम 23 बाब की तीसरी आयत में पढ़ें तो लिखा है, 6 दिन कामकाज किया जाए पर 7वें दिन खास आराम का और मुकद्दस मजमा का सबत हो। ठीक है, आराम का भी और मुकद्दस मजमा का भी सबत हो। कि
घर सौंदे ना रहना मुकद्दस मजमा भी होता है उस दिन रियली, और यहां और किसी कामों में ना निकल जाना। पर इससे भी मैं बढ़कर आपको एक और बात बताता हूं। मैं बड़ी आज उससे ना रोंग पे खड़े हो जाते हैं कि वो अरे हमसे ये गलतियां होती रही हैं, या आज जो इस कलाम को बाद में भी सुनेंगे वो रियलाइज करें कि हमसे ये गलती होती रही है, आज तक गलती होती रही है और आइंदा शायद हम ना वो करें गलती। आमीन। 11वीं आयत से पढ़ते हैं, और वो उसे खुदावन के हुजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और काहन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। 9वीं आयत से पढ़ते हैं, फिर वापस 11 पे आते हैं। और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इस्राएल से कह कि जब तुम उस मुल्क में जो मैं तुमको देता हूं दाखिल हो जाओ और उसकी फसल काटो, तो तुम अपनी फसल के पहले फलों का एक पूला काहन के पास लाना। ठीक है, जिस मुल्क में तुम बसो जाके और उसके बाद तुम अपनी फसलें लगानी शुरू करो, तो उसमें से पहले फलों का एक पूला काहन के पास लाना। और फिर क्या करेगा, फिर 11वीं आयत को फिर दोबारा से पढ़ते हैं, और वो उसे खुदावन के हुजूर हिलाए ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और काहन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह को हिलाए। तो यहूदी सब्बत के हिसाब से जो सैटरडे का दिन था, सब्बत का दूसरा दिन संडे बनता है, जो हफ्ते का पहला दिन था। यहां पर हफ्ते का पहला दिन नहीं लिखा, यहां सब्बत का दूसरा दिन लिखा है। ठीक है, जो संडे का दिन है, जो हफ्ते का पहला दिन है। तो यहां पर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी आप जब अपनी जिस मुल्क में आप जब बसते हो वहां पर जॉब वगैरह करनी शुरू करते हो, आपकी कारोबार करना शुरू करते हो या कुछ भी, तो जो भी आपका पहला फल होता है वो हफ्ते के दूसरे दिन यानी संडे के दिन, हफ्ते के पहले दिन आप काहन के पास लो। काहन कहां होता था? उसकी हैकल में। काहन ये नहीं कि काहन के घर ले जाओ, नहीं, हैकल में ही होते थे काहन। उसके काहन के पास लेके जाओ, वो उस हदिये को, जो आपका गिफ्ट या नजराना जो आप लाए हो, अपनी कमाई का हिस्सा, अपनी फसल की कटाई का पहला फल जो आप लाए हो, आपकी कमाई का हिस्सा, काहन उसको हफ्ते के पहले दिन सुबह के वक्त में, सुबह जब आप हैकल में जाओ दूसरे दिन, हफ्ते के पहले दिन या संडे के दिन, तो काहन जो है उसको खुदावन के हुजूर हिलाए वो। ओके, आगे पढ़ते हैं। ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो, और काहन उसे सब्बत के दूसरे दिन सुबह हिलाए। 12वीं आयत से, और जिस दिन तुम पूले को हिलवाओ उसी दिन एक नर बेऐब यकसाला बर्रा सोख्तनी कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हुजूर गुजरानो, और उसके साथ नजर की कुर्बानी के तेल, ये तेल मिला हुआ मैदा एफा के 2/2 हिस्सा के बराबर होता ताकि वो आतशीन कुर्बानी के तौर पर खुदावन के हुजूर राहत अंगेज खुशबू के लिए जलाई जाए, और उसके साथ मैं का तपावन हीन के चौथे हिस्से के बराबर मैं लेकर करना। और 14वीं आयत में बड़े गौर से सुनना है, और जब तक तुम अपने खुदा के लिए यह चढ़ावा ना ले आओ, उस दिन तक नई फसल की रोटी या भुना हुआ अनाज या हरी बालें हरगिज ना खाना। तुम्हारी सब सुकूनत गाहों में पुष्ट दर पुष्ट हमेशा यही आयन रहे। इसका क्या मतलब है? इसका शायद आपको थोड़ा सा समझ आया हो, मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। यह आज के मैसेज का हिस्सा नहीं था, मगर सुबह जब मैं दुआ कर रहा था और इन पॉइंट्स को मैं पढ़ रहा था, रिवाइज कर रहा था, तो खुदावन ने ये कलाम ये भी मुझे बताया कि मैं आपके साथ शेयर करूं। खुदावन के कलाम में हमने 11वीं आयत में पढ़ा है कि आप या उन लोगों के लिए यह हुक्म था, खुदा ने दिया कि अपना जो पहले फल है उसमें से एक पूला, यानी आपकी जो कमाई है, आपकी जो तनख्वाह है, या आपने जो कुछ इस वीक में कमाया है या इस महीने में कमाया है, आप हफ्ते के पहले दिन या सब्त के दूसरे दिन यानी इतवार के दिन
संडे के दिन आप अपनी वो कमाई का हिस्सा खुदावन की हुजूरी में लाओ और काहिन को दो हाथों में। इसीलिए जब हम ऑफरिंग लेते हैं तो या मैं यहां पर खड़ा होता हूं प्लेट लेके, या पास्टर जेकब के लिए मैंने उनको खास इंस्ट्रक्शन है, वो ना तो हूं तो मैं वो सब जो एल्डर या अशर्स ऑफरिंग लेते हैं वो उनके हाथ में वो आकर तो काहिन के हाथों में दें ताकि काहिन खुदा के हुजूर उसको हिलाए। हिलाने का वही मकसद है कि उसको उठाया जाए, उस खुदावन से उसकी लिए बरकत मांगी जाए और खुदावन के हुजूर उसको पेश किया जाए ऑफरिंग को। और दूसरी इसमें जो समझने वाली बात यह है कि खुदावन के कलाम में लिखा है 14 आयत में, और जब तक तुम अपने खुदा के लिए यह चढ़ावा ना ले आओ उस दिन तक, जब तक जो आपने पिछले वीक में कमाया है, जो आपने पिछले, अगर आपको मंथली सैलरी मिलती है तो जो आपने पिछले महीने आपने कमाया है, जब तक उसका हिस्सा आप खुदावन के घर में ना लेकर आओ, तो लिखा है कि अपनी नई फसल की रोटी या भुना हुआ अनाज या हरी बालें हरगिज ना खाना। उस कमाई को जो आपने कमाई है, अगर उसका हिस्सा खुदावन के घर में हैकल में काहिन के हाथों में नहीं देते आके, तो जो कुछ बाकी है उसका आपके ऊपर कोई हक नहीं बनता। आप उस पैसे की, उस कमाई को, उस फसल के को आप खा भी नहीं सकते। खुदावन ने यह हुक्म जारी किया है। हम गुनाह करते हैं, हम शायद इसलिए भी करते हैं कि हम इस शरीयत के अंडर नहीं हैं। शरीयत ने ये जो हुक्मों की खुदावन यीशु मसीह ने ये हुक्मों की दस्तावेज हमारे सामने से हटा दी है, पर ये जो हुक्म लिखे हैं इनका कोई ना कोई मकसद जरूर था, उनकी बरकतें जरूर लोगों को मिला करती थी। आमीन, हालेलुया। आज भी इसीलिए शायद यहूदी कौम, इसीलिए सारी दुनिया पर इकोनॉमी उनके हाथ में है। आमीन, और सारा पैसा उनके हाथ में है, तरक्की उनके हाथ में है। दुनिया पागल हुई हुई है, दुनिया कंफ्यूज हुई हुई है, सारी कौमें कंफ्यूज हुई हुई हैं कि वो लोग क्यों बरकत पा रहे हैं, उनके पास कहां से इतना पैसा होता है। थोड़े से लोग हैं, दुनिया को वक्त ज्यादा, मगर उसकी वजह यह है कि वो बेशक अभी तक इन हुक्मों पर अमल करते, ये शरीयत के जो हुक्म खुदा ने दिए थे, और उसमें बरकत है। आमीन। हम भी इब्राहिम की बरकतों के, उसकी बरकतों के वारिस हैं। हम यीशु में जब आ जाते हैं, सेरेमोनियल जो हुक्म है वो हमारे लिए नहीं है, पर कुछ बरकतों के हुक्म जरूर हैं। उसमें खुदा के हुजूर में हदिया लाना, नजराना लाना वो जरूरी है। यहां पर खुदावन के कलाम में लिखा है कि तुम उसके हुजूर में वो अपना एक पुला लाओ, काहिन उसके हुजूर आपको वो हिलाए, और खुदावन आपकी कमाई, जब तक आप काहिन के हाथों में नहीं देते और काहिन उसको दुआ नहीं करके कबूल करता, तो खुदावंद भी उसको कबूल नहीं करता। यहां पे लिखा है ताकि वो हदिया तुम्हारा कबूल हो, खुदावंद तुमको कबूल करे। 11वीं आयत में लिखा है ताकि वो तुम्हारी तरफ से कबूल हो हदिया। और 14वीं आयत बहुत खतरनाक है कि जब तक जो हमने कमाया है पिछले वीक में, पिछले महीने में, अगर मंथली सैलरी मिलती है तो महीने का हिसाब लगा लें, वीकली सैलरी मिलती है तो वीक का हिसाब लगा लें, डेली सैलरी मिलती है तो डेली का हिसाब लगा लें। अगर वो हम खुद, यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि हफ्ते के पहले दिन वो लेकर आए, जाने अनजाने में खुदा ने यह हुक्म, खुदा तो सब कुछ जानता है, मगर शायद यहूदियों को यह मालूम नहीं होगा इस बात का, क्योंकि उनका मजमा हफ्ते के पहले दिन नहीं होता ही नहीं है, वो जमा नहीं होते। खुदा उनका कलाम है, मेरी बातें नहीं है, मगर यहां पे ऐसा ही लिखा है कि हफ्ते के पहले दिन हम उस कमाई का हिस्सा लेकर आए खुदा उनकी हुजूरी में। अगर नहीं लाते तो उसमें से कुछ भी खाना, हमारे लिए घर का अनाज, हमारे जो घर के लिए रोटी लाते हैं, हम ग्रोसरी करने जाते हैं, सैलरी मिली ग्रोसरी करने चाहेंगे, चलो ग्रोसरी करके लेकर आते हैं, आज हम अगले हफ्ते में हमने खाना अगले हफ्ते के लिए सारा, उसको आप खा नहीं सकते जब तक आपने उसका खुदा का हिस्सा खुदा की हुजूरी में हफ्ते के पहले दिन नहीं दिया।
خدا کے کلام میں ایسے لکھا ہے. آگے چلتے ہیں. آمین. اتنا میرا حال بہت ہے. اگر ہم لوگ ایسا یہ غلطی کرتے رہے ہیں تو آج ہم توبہ کریں گے. آمین. سب توبہ کریں گے. میں نے یہ بات سیکھی ہے. مجھے منتھلی سیلری ملتی ہے, جو چرچ سے جو بھی کچھ ملتا ہے مجھے بلیسنگز آپ کی طرف سے, وہ مہینے کے اینڈ پہ ملتی ہے. اور منتھ کے فرسٹ سنڈے کو کچھ بھی ہو جائے میں ضرور صبح چرچ آتا ہوں اور پورے مہینے کی جو دہیے کی ہے 10واں حصہ خداوند کا جو بھی بنتا ہے, خداوند سے معافی مانگ کے کہ کوئی کیلکولیشن میں غلطی نہ ہو گئی ہو یا میں کچھ لکھنا بھول گیا ہوں کسی وقت, تو میں 10واں حصہ پہلے ہی سنڈے کو خداوند کی حضوری میں آ کر دیتا ہوں. اگر کوشش کرتے ہیں کہ ہم پوری فیملی آئیں صبح چرچ میں, اگر نہیں آ سکتے تو میں آؤں گا یا میری وائف آئیں گی, یا موسٹ آف دا ٹائمز چاہے رات کو سیٹرڈے کو کتنے بھی تھکے ہوئے ہم آئیں کہیں سے بھی, صبح ضرور ہم چرچ آئیں گے اور خداوند کی خود کا جو ہماری جو کمائی کا حصہ ہے وہ ہم خداوند کی حضوری میں دیں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ پہلے سنڈے کے بعد جو کچھ خداوند نے دیا میں اس کو, اور یا آگے بھی جو ملنے والا ہے اس کو میں کھانے کا حق بھی نہیں رکھتا جب تک میں خداوند کا حصہ خداوند کو نہ دے دوں. آمین. چلیں 15-20 منٹ میں اگلے باقی حصے بھی کمپلیٹ کرتے ہیں. 12 اس کے پوائنٹس ہیں, مگر اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں کہ ہمیں اس کی ضرورت تھی, تو شاید خداوند نے اس لیے یہ کلام دیا. اگلے پوائنٹس جو ہیں ان کو ہم کم کریں گے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے, بیکاز آف دیئر فیئر, یہودیوں کے ڈر سے وہاں کے دروازے بند تھے. ہم جب خدا کے گھر میں آتے ہیں کئی دفعہ ہمارے دل میں بھی بہت سے ڈر بیٹھے ہوتے ہیں, پر خداوند کی حضوری میں جب آتے ہیں نا تو وہ جو ڈر ہے نا, ڈر, فیئر جس کو بولتے ہیں, دہشت جس کو بولتے ہیں, خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی. تموتھیوس کے خط میں لکھا ہے. آمین. اس نے ہمیں تربیت کی روح دی ہے, میل ملاپ کی روح دی ہے, قوت کی روح دی ہے, فتح مندی کی روح دی ہے. تو ضرور ہے کہ شاید ہم جب کسی بھی ڈر یا خوف, کوئی بیماری کا بھی ہو سکتا ہے ہمارے, جیسے ابھی میں اندر دعا کر رہا تھا, میں سن رہا تھا پاسٹر جیکب کہہ رہے تھے کہ جب ہم خدا ان کے گھر میں آتے ہیں تو کبھی کبھی ہمارے ذہن میں کچھ ایسے خیالات ہوتے کہ گھر میں کچھ ایسا کچھ رہ تو نہیں گیا, دروازے بند کیے ہیں یا نہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے, کئی دفعہ ہم گھر سے نکل آئے تو وہ سالہ کو یاد آتا پتہ نہیں چولہا بند میں نے کیا تھا کہ نہیں, وہ کچھ رکھا ہوا تھا چولہے پہ. 1-2 دفعہ ہم واپس گئے دیکھنے کے لیے چولہا بند کیا کہ نہیں کیا, اور 1 دفعہ نہیں کیا تھا تو بھول ہی گئے تھے. تو جو کچھ رکھا تھا اچھا ہے کہ اس میں کافی پانی تھا تو وہ چلتے چلتے سوکھ گیا, ہمارے جاتے تک تقریباً جلنے ہی والا تھا وہ, جو کچھ بھی اس میں رکھا تھا. اینی اس قسم کے بہت سارے فیئر ہمارے اندر ہوتے, دروازہ لاک کیا کہ نہیں دیا, یہ کیا کہ نہیں, وہ کیا کہ نہیں, اور یا پتہ نہیں اگلے ہفتے میں نے بل دینے, وہ کیا ہوگا, ہم نے کل ڈاکٹر نے یہ کہا تھا تو یہ ہو گیا, کیا ہوگا, اور طرح طرح کے ہمارے اندر دہشت, ڈر. پر ہم خداوند کی حضوری میں جب آتے ہیں نا تو اس کا جو پاک روح ہے نا ہمارے اندر سے, وہ خداوند کی حضوری جو ہے وہ بندھن کو توڑتی ہے, وہ ڈر کی اسپرٹ دور ہوتی ہے, اور ہمیں خدا کا پاک روح جو دہشت کی اسپرٹ نہیں ہے, کیونکہ ڈر جو ہے وہ ایک اسپرٹ ہے. خداوند یسوع مسیح کے خدا کے کلام میں لکھا ہے ہمیں خداوند نے دہشت کی روح نہیں دی, تو اس کا مطلب ہے دہشت کی روح ہوتی ہے. اور اگر ہمارے اندر کوئی اسپرٹ, کوئی ڈر ہے, دہشت ہے, تو وہ کوئی اسپرٹ ہی ہے جو کام کر رہی ہے, وہ بدروح ہے جو کام کر رہی ہے. آمین. جو ہو سکتا ہے کہ یہ شاگردوں کو بھی ڈر ڈالا ہوا تھا کہ یہ یہودی تمہیں چھوڑیں گے نہیں, یہ تمہیں مار دیں گے. اب تمہارا استاد, تمہارا جو جس کو تم رب بولتے تھے, یسوع کو, وہ چلا گیا, اب یہاں پہ ہے ہی نہیں وہ, تو اب یہ یہودی تمہیں مار ڈالیں گے, تمہارے دشمن جو ہے وہ تمہیں مار ڈالیں گے. اور اس ڈر سے ایک جگہ بند تھے, دروازے بھی بند تھے. مگر آگے لکھا ہے اسی آیت میں کہ خداوند یسوع مسیح ان کے درمیان میں موجود ہوتا ہے, وہاں پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. 20 باب
उसकी 19 आयत ही हम पढ़ रहे हैं कि वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे, यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। यीशु उनके बीच में आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम्हारी सलामती हो। खुदावन यीशु के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं हो सकता जहां पर उसने जाना हो। हालेलुया। जहां पर 2 या 3 जमा हो, वहां पर यीशु को आने से कोई रोक नहीं सकता। बेशक दरवाजे बंद कर दिए जाए, बेशक बाहर पहरे लगा दिए जाए, बेशक वहां पर फौज लगा दी जाए, जहां पर 2 या 3 यीशु, खुदावन यीशु के नाम पर जमा होंगे उससे दुआ करने के लिए, ओ यीशु को कोई नहीं रोक सकता वहां पर आने से। हालेलुया। यीशु उनके दरमियान में आकर खड़ा हो जाता है। आज किसको किसको यीशु की जरूरत है? हम सबको यीशु की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा दिल कर रहा है इस वक्त हम ना सब, आइए सब खुदा उनकी हुजूरी में खड़े हो जाते हैं। हम बेटी समरीन के साथ उसको वो गीत को लीड करती है। हम सबको आता है वो गीत, दुआ में गाएंगे, सिर्फ दुआ में। हालेलुया। आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी, जिसको जिसको खुदा यीशु की जरूरत है और आज वो चाहते हैं, हमारा ईमान है, हम जैसे यीशु को पुकारते हैं वो हमारे दरमियान में आ जाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब आंखें बंद करेंगे और जब ये गीत गाया जा रहा है तो सबकी यही जुबान पर यही वर्ड अल्फाज होने चाहिए, आ यीशु नासरी। हालेलुया। बेटा यहां पे आ जाना, इससे देखो। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. सब खुदावंद से मांगे कि आ यीशु नासरी। जैसे वो लोग वो दरवाजे बंद थे, खुदावन यीशु मसीह वो दुआ में जब वो सारे शागिर्द बैठे हुए, वो मशगूल थे। वो हफ्ते का पहले दिन, आज शाम का वक्त है, हफ्ते का पहला दिन है। आज महसूस करें खुदावन यीशु यहाँ मौजूद है और वो आना चाहता है, और जो जो उसको पुकारता है आज इस गीत के सबब से उसकी जिंदगी में आज यीशु आके कहता है, बेटे मेरी बेटी, तुम पर सलामती हो। हालेलुया। आइए कहते हैं, आ यीशु नासरी। हालेलुया। यस। आ यीशु नासरी। मैनू लोड़ तेरी यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी, मैनू लोड़ तेरी।
ہے, جو ہم نے گایا ہے, جو ہم نے دعا کی ہے, خداوند یسوع یہاں موجود ہے. اور زور سے ہاللویا کا نعرہ لگا کر بیٹھ سکتے ہیں. ہاللویا, ہاللویا, یسوع موجود ہے, وہ موجود ہے. ہاللویا, سب بیٹھ سکتے ہیں. پریز گاڈ. اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں. یسوع ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. Jesus said to them, peace be with you. ہاللویا, ہاللویا. خداوند یسوع ہم سب کو سلامتی دینے کے لیے آیا ہے. ہم سب پر اس کی سلامتی ہو, آپ سب پر اس کی سلامتی ہو. جیسا آپ نے دعا کی ہے, ایمان رکھیں, خداوند آج آپ کو سلامتی بخشتا ہے. ہر زندگی کے ہر ایریے میں آپ کو سلامتی دیتا ہے. اس کے بعد لکھا ہے اگلی آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں, اگلا جو پوائنٹ ہے 5واں پوائنٹ, تو لکھا ہے 20 آیت میں, پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. ہاللویا, شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں, 20 آیت میں لکھا, شروع سے پڑھتے اس کو تو لکھا ہے, اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا. خداوند یسوع جب موجود ہوتا ہے تو وہ ایویڈنس, وہ پروف کے ساتھ آتا ہے کہ میں موجود ہوں. ہاللویا, وہ موجود ہے. اور جب میں یہ مائنڈ میں میرے اسی لیے تھا, یہ گیت ہم نے جو گایا کہ آ یسوع ناصری, گر گیا میں طوفان آوج, آ یسوع ناصری. ہم بائبل میں بھی جب پڑھتے ہیں, دو دفعہ ہم ذکر پڑھتے ہیں الگ الگ طوفانوں کا, اور بہت سے طوفانوں کا. لکھا ہے کہ جب تو شاگرد وہ کشتی طوفانوں میں پھنسی ہوئی تھی تو خداوند یسوع مسیح, ہاللویا, خداوند یسوع مسیح آ جاتے ہیں. ہاللویا. ایک دفعہ تو لکھا ہے وہ کشتی میں ہی پیچھے سو رہے تھے, شاگردوں نے اٹھایا جا کے. ایک جگہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کشتی میں تھے ہی نہیں. ہاللویا, اور وہ کشتی طوفان میں پھنس گئی اور سب وہ ڈر گئے اور پریشان اور خوف زدہ ہو گئے. تو خداوند یسوع مسیح کو آتے دیکھتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح وہ کشتی کے قریب آتے ہیں, سب ڈرے ہوئے ہیں. ان سے کہتے ہیں کہ ڈرو مت, میں ہی ہوں. ہاللویا. اس کے بعد اگر اس واقعے کو پڑھے تو لکھا ہے وہ جب خداوند یسوع مسیح کو اپنی کشتی میں چڑھا لینے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح کشتی میں آتے ہی ہیں تو سارا طوفان رک جاتا ہے. ہاللویا, بارش رک جاتی ہے, آندھی طوفان رک جاتا ہے. اسی لیے آج بھی خداوند یسوع مسیح جب یہاں آئے تو آج اگر آپ کوئی بیماری, آج کوئی دکھ, آج کوئی پریشانی, آج کوئی بھی ایسی بات, کوئی اندھیرا بھی آپ لے کر آئے ہیں تو آج وہ دور ہوگا. آمین. خداوند یسوع مسیح ایویڈنس کے ساتھ آتا ہے, پروف کے ساتھ آتا ہے. آمین. اس کے لیے کوئی بھی جگہ جو ہے نا وہ بند کری نہیں جا سکتی. آمین. 139 زبور میں لکھا ہے میں تیری روح سے بچ کے کہاں جاؤں. ہاللویا. تیری روح تو پلا نہ سکے, میں کدھر جاؤں, سچ بچ کر کہاں جاؤں. ہاں, یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں. اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے. ہاللویا. اگر پاتال میں بستر بچھاؤں تو تو وہ دیکھ, تو وہاں پر بھی ہے. ہاللویا. اور تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے. میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا تک چلا جاؤں, تو وہاں پر بھی ہے. ہاللویا. تیرا ہاتھ میرے ساتھ ہے, تیرا دہنا ہاتھ مجھے سنبھالتا ہے. اندھیرا بھی مجھے چھپا نہیں سکتا, اندھیرا بھی تیرے سامنے اجالا ہو جاتا ہے. تو جہاں موجود ہوتا ہے اندھیرا اجالا یکساں ہیں, ایک ہی جیسے ہیں. خداوند سے کوئی چھپ نہیں سکتا. خداوند کی روح سے, پاک روح سے بھاگ کر کہیں دور کوئی نہیں جا سکتا. خداوند یسوع مسیح اپنے ہاتھ اور پسلی اس شاگردوں کو دکھاتے ہیں. آج خداوند یسوع مسیح آپ کو اور مجھے بھی یہ دکھانے کے لیے آئے ہیں کہ دیکھو میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا. موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. پترس کے خط میں پترس لکھتا ہے اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. ہاللویا. اس کے مار کھانے سے آج بھی ہمارے پاس وہ ایویڈنس ہے. آج خداوند یسوع مسیح آپ کو وہ ایویڈنس پروف دے گا کہ یہ دیکھو میرے ہاتھ پاؤں اور میری پسلی, میں آج موجود ہوں تمہیں شفا دینے کے لیے.
शागिर्द उनको खुदा यीशु मसीह को देखकर खुश हुए। हम कितने भी दुखी क्यों ना हो, कितना भी गम क्यों ना हो, कितने भी परेशान क्यों ना हो, खुदा उनके घर में आते हैं तो एक खुशी सी आ जाती है कि वाह आज हम वर्शिप करें, आज खुदा की हम हुजूरी में उसकी ताजीम और तारीफ करने के लिए आए हैं। खुदा यीशु मसीह दोबारा कहते हैं, अपने हाथ और पांव जब दिखाए तो उसके शागिर्द उसको देखकर खुश हुए। तो खुदावंद यीशु मसीह 21 आयत में फिर कहते हैं तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया, हालेलुया। जब खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर आ मौजूद, हमने ये गीत गाया ना, इसके बाद मेरा ईमान है खुदावंद यीशु मसीह ने आपको फिर कहा है तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। मैं भी कहता हूँ यीशु के नाम में तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। फेसबुक पे, इंटरमीडिया पे, वो जो भी सोशल मीडिया पे भी देख रहे, तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। दोबारा खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं हाथ पांव अपने और पसली दिखाकर कि तुम्हारी सलामती हो। आगे लिखा है कि यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, जैसे मुझे बाप ने भेजा है मैं भी तुम्हें भेजता हूं। 8वां पॉइंट है आई एम सेंडिंग यू, मैं भी तुम्हें भेजता हूं। यीशु ने कहा तुम्हारी सलामती हो, जैसे यीशु ने, खुदा बाप ने मुझे भेजा है, जैसे जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। आमीन। मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अजीजों, जब हम उसके घर में आते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह मौजूद होता है, जब हम उसकी हुजूरी को महसूस करते हैं, जब उसके अपने बाप के घर में उसकी इबादत के लिए आते हैं, और जहां कहीं 2 या 3 जमा होते हैं खुदावंद यीशु मसीह वहां जमा होते हैं। और आज भी जो जमा होने के लिए आए हैं या अक्सर जहां जमा होते हैं वहां पर खुदावंद यीशु मसीह आ जाते हैं। स्पेशली जब हम खुदा के घर में आते हैं, उसकी हैकल में, जहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि मुझे अपने बाप के घर में होना जरूर था। खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप के घर में, हमारे बाप के घर में वो आ मौजूद होते हैं, हम पर हमें सलामती बख्शने के लिए, हमें शिफा बख्शने के लिए। आमीन। पर वो एक बात और कहते हैं कि मैं भी तुम्हें भेजता हूं। अजीजों, जो लोग चर्च नहीं आते ना, जो लोग इबादतों में नहीं आते ना, वो शायद अपनी कॉलिंग को भी रिसीव नहीं करते हैं। हालेलुया। वो अपनी कॉलिंग को रिसीव नहीं करते। इस कलीसिया के भी बहुत से लोग हैं, अगर आप रिसीव करते हैं, आपने समझ लिया है, तो आप अपनी जिम्मेदारी को आज के बाद कमिटमेंट के साथ, मैं उनको कच्ची कमिटमेंट कहता हूं, जो अपनी जिम्मेदारी, शायद उन्होंने खुदावंद यीशु की आवाज ही नहीं सुनी, क्योंकि पाक करूं। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर फूंका। जब उन्होंने कहा ना कि मैं तुम्हें भेजता हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर फूंका और कहा रूल कुदस लो। वो लोग जो चर्च मिस करते हैं वो रूल कुदस को मिस करते हैं, क्योंकि जहां यीशु आता है वहां वो रूल कुदस देता है। हालेलुया। फिर रूल कुदस हमारी कमिटमेंट्स को पक्का करता है, हमें मजबूत करता है कि हमारी जो कमिटमेंट है, हमारा जो बुलावा है, हमारी जो कॉल है, हम उसको पूरे तौर पर निभा सके। जो नहीं निभाते वो, इसका मतलब है उनकी यीशु से मुलाकात नहीं हुई, यीशु ने उनको भेजा ही नहीं है, उन्होंने शायद खुद इस जिम्मेदारी को ले लिया है अपने पूर्व, या शायद पास्टर ने थोप दिया है, शायद अपनी जिस्मानी हालत में हमने उस जिम्मेदारी को ले लिया हो। चाहे वो कोई भी हो, चर्च में कोई यशर का काम हो, क्वायर हो, मीडिया का हो, पास्टर हो, डीकन हो, एल्डर हो, कोई भी हो, जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने भेजा है, शायद अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, तो वो, मैं ये कहता हूं कि हो सकता है कि वो उसने रूल कुदस नहीं पाया, उसको रूल कुदस ने अभी गाइड ही नहीं किया, और यीशु ने अभी तक उनको उसका पर्पस नहीं बताया। हम अपना पर्पस नहीं हासिल करते, हम अपना मकसद जो है, जो खुदावन की बादशाही में हमारा कोई मकसद है खुदावन यीशु मसीह की तरफ से, खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में आ नहीं पाती, क्योंकि हम उसके घर में आते नहीं हैं इबादत करने के लिए। और जब आते हैं तो जरूर है कि खुदावन यीशु मसीह मौजूद होता है, क्योंकि हम कमजोर हैं, हम इंसान हैं, हम भूल भी सकते हैं, हम सो भी सकते हैं, हम थक भी जाते हैं, हम सुस्त भी हो जाते हैं, और हम शायद निगलेक्ट भी, भूल भी जाते हैं, दरगुजर भी कर जाते हैं, शायद इसकी वैल्यू को भी नहीं समझते कि खुदावंद यीशु मसीह के घर में आने की वैल्यू क्या है। जब आएंगे तो वो क्या करेगा हमारे साथ, क्या हमें देगा, या क्या फायदा होगा। अय्यूब की किताब में लिखा ना कि बहुत से लोग कहते हैं हमें क्या फायदा हुआ,
کہ ہمیں دعا کرنے کا کیا فائدہ ہے, ہمیں خدا قادر مطلق خدا کی عبادت کرنے کا کیا فائدہ ہے جب وہ سنتا ہی نہیں ہے. عزیزو, اگر ہم اس کے آگے گھر میں آ کر عبادت کریں سچے دل سے, پورے دل سے, تو ضرور وہ جیسے اس نے ہفتے کے پہلے دن, یہ پہلی گیدرنگ تھی جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جمع ہو کر دعا کرنی شروع کی تھی کلیسیا نے. یہ فرسٹ گیدرنگ تھی. ریزریکٹڈ لارڈ, جس کے لیے کوئی دروازے جس کو بند نہیں کر سکتے, جس کو کوئی دروازے روک نہیں سکتے, یہ پہلی گیدرنگ تھی, پریئر میٹنگ تھی جو ہو رہی تھی. تو خداوند یسوع مسیح وہاں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے تمہاری سلامتی ہو, تم پر سلامتی ہو, اور پھر کہتے میں تمہیں بھیجتا ہوں. آمین. آج عزیزو, اب خداوند کی آواز کو سنیں. میں بہت ساری ضروریات ہیں یہاں پر. اگر آپ کو خداوند توفیق دے تو ضرور ایکسپٹ کریں خداوند کے بھیجنے کو. آمین. خداوند کے بھیجنے کو, خداوند کی کال کو ایکسپٹ کریں. خداوند کے گھر میں بہت سارے کاموں کی ضرورت ہے. آمین. اور آج میرا یہ ایمان ہے کہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات کرے گا. کیونکہ آج ہم نے ابھی یہ دوبارہ جب یہ گیت گا رہے تھے تو میں ایمان میں اس بات کو خداوند کی شکر گزاری کر رہا تھا کہ جیسے ہم یہ گا رہے کہ آ یسوع ناصری مینوں لوڑ تیری, ہمیں ضرورت ہے اس کی. آج وہ آ کر ہمیں اپنا پاک روح بھی آپ سب کو, مجھے ایک بار وہ پھر فریش کرنا چاہتا ہے. جب ہم کمیونین لے, ہولی کمیونین میں آئیں, اس کے ساتھ ایک بدن ہو جائیں, تو اس کی پوری سلامتی, اس کی کامل سلامتی ہم پر ٹھہرے, اور ہمیں ہمارے آنے کا مقصد وہ ظاہر کرے کہ کس کام کے لیے وہ ہمیں بھیجتا ہے, کہ آج ہم اس کی بادشاہت میں کر سکیں. آمین. آگے ہم جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ دیکھتے ہیں کہ 10ویں اور 11ویں 12ویں آیت میں جلدی سے 2-3 منٹ میں اس کو ختم کرتے ہیں. لکھا ہے, مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما, جسے توام کہتے ہیں, یسوع کے آنے کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا. پس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے. مگر اس نے ان سے کہا, جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں اور سوراخوں میں کو نہ دیکھ لوں, اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں, اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈالوں, ہرگز یقین نہ کروں گا. آمین. خداوند کا شکر ہو, خداوند کی تعریف ہو کہ جو آخر میں خداوند یسوع نے کہا ہم سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں. مگر یہاں پر لکھا ہے کہ ان شاگردوں میں سے, مگر ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما ان کے بیچ میں یسوع کے آنے پر موجود نہ تھا. آج اپنے آس پاس آپ بینچوں میں دیکھیں, آج اپنے فیملیز کے لیے سوچیں کہ آپ کی فیملی میں سے کون آج خداوند کے گھر میں موجود نہیں ہے. یا آج کوئی جو سوشل میڈیا پہ بھی ہیں وہ بھی آج سوچیں کون آج سنڈے کے دن پاکستان میں یا کہیں پر انڈیا میں, جہاں پر بھی, مڈل ایسٹ میں یا امریکہ میں, کہیں پہ بھی خداوند کا کلام سنیں. دیکھیں, سوچیں کون آج خداوند کے گھر میں آج آپ کی فیملی میں سے نہیں گیا یا آپ نہ جا سکے. آج یہاں لکھا ہے ان 12 میں سے ایک شخص یعنی توما خداوند کے یسوع کے آنے پر وہاں موجود نہ تھا. آج آپ غور کریں اپنی کلیسیا میں, اپنے چرچ میں, جب اس جگہ پر غور کرتے ہیں کہ آپ کی فیملی میں سے یا اس کلیسیا میں سے کون کون ہے جو آج یسوع کے یہاں پر آنے پر وہ موجود نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ خداوند یسوع کی جو سلامتی 3 بار اس نے کہی ہے وہ بھی آج نہیں پائیں گے. خداوند یسوع مسیح نے جو پاک روح پھونکا ہے آج وہ بھی نہیں پائیں گے. آج جو خداوند یسوع مسیح نے بھیجا ہے آج وہ بھی نہیں پائیں گے. ان کی کمٹمنٹ کچی رہے گی ہمیشہ. آج غور کریں, آپس میں غور کریں, ادھر ادھر دیکھیں کون آج موجود نہیں ہے ہماری فیملی میں سے, کیونکہ وہ یہ مس کریں گے. آپ کیا نہیں پاتے جب چرچ نہیں آتے؟ یہ سب چیزیں ہیں ہم نہیں پاتے. خدا کا کلام ہے اور اس میں سے میں یہ باتیں بتا رہا ہوں. میں اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا. میں چاہتا ہوں کلیسیا برکت پائے, سب لوگ برکت پائیں.
उन 12 में से तुमा वहां मौजूद नहीं था। आप सबके नाम लें जो जो आपकी फैमिली में से मौजूद नहीं है, या जो जो कलीसिया में से मौजूद नहीं है। आप कहें ओ आज फलाना नहीं मौजूद, यहाँ पे खुदा यीशु मसीह आया हुआ है, फलाना नहीं मौजूद, यीशु आया हुआ है। या किसी भी इबादत में आप जाते हैं ना, तो लिखा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, यीशु मौजूद होता है। खुदा यीशु ने खुद कहा मैं उनके तुम्हारे दरमियान में हाजिर हूं। तो इसका मतलब है जो भी कोई नहीं आता वहां पे, वो उन बरकतों से महरूम रह जाता है जब जहां पर भी लोग जमा होते हैं। आगे लिखा है, बल्कि हमने पहले ही पढ़ा है कि शागिर्दों ने उसको कहा कि हमने खुदावन को देखा है। 25 आयत में लिखा है, बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावन को देखा है। हालेलुया। हम सब कहने लगे हमने खुदावन को देखा है। प्रेज गॉड। हम भी आज कह सकते हैं हमने खुदावन को देखा है। हालेलुया। उसने कहा मैं उंगली डाल के देखना चाहता हूं हाथों में। वो कहने लगे हमने देखा है। वो कहने लगा मैं पसली में अपना हाथ डाल के देखना चाहता हूं, पसली भी वो जिसमें बाला लगा था। उन्होंने कहा हमने वो भी देखी है। तू मिस कर गया है, तू बरकतें पर मिस कर गया है। हमने तो पाकरू भी हमारे। आगे लिखा है, उसने कहा मैं तो जब तक डाल के ना देखूं ना, हाथ पांव ना देखूं, होल ना देखूं, सुराख ना देखूं जो कीलों के हैं, मैं यकीन नहीं करूंगा। पर यहां पर तुमा के शक की बात नहीं हो रही, ठीक है, शक की बात नहीं हो रही, यहां मौजूदगी की बात हो रही है कि वो मौजूद नहीं था। हालेलुया। हम मौजूद हैं, या जो लोग भी मौजूद हैं वो हैं, वो शागिर्द मौजूद थे, वो मौजूद नहीं था। ये मौजूदगी शक की नहीं बात हो रही। ये अच्छी बात है हम खुदा को देखें कि खुदा तू है तो हमें बता तू है। हालेलुया। प्रेज गॉड। पर वो जब लिखा है 8 रोज बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे। 8 रोज बाद का मतलब है नेक्स्ट संडे, नेक्स्ट संडे। 8 रोज के बाद फिर संडे का ही दिन है। हालेलुया। शाम का ही वक्त है। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह वहां पर, वो शागिर्द फिर वहां पे बंद थे, दरवाजे बंद थे। लिखा है और यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। फिर उसने तुमा से कहा, तुमा उस दिन आ गया। हालेलुया। उसने कहा मेरे भाई, मेरे दोस्त, बाकी लोग सारे जमा हो गए। पिछले संडे को भी यीशु आ गया था, मैं वहां नहीं था, मैंने मिस किया, आज जाऊंगा। वो पता नहीं पिछले संडे को तुमा को शायद लॉन्ड्री करनी होगी, शायद तुमा ने किसी ने कि उसको दावत पे बुलाया होगा, या हो सकता तुमा ने, उसकी बीवी ने, या उसके फैमिली ने किसी और को घर दावत पे बुलाया हुआ हो, यानी कोई पता नहीं है। तुमा ने कहा ओ यीशु तो चला गया, चलो जॉब कर लेता हूं, शायद तुमा की जॉब लगी हुई हो उस दिन। यू नेवर नो तुमा क्या कहां था, पर नहीं, मौजूद नहीं था वहां पे। हालेलुया। और उसने कहा ओ नहीं, मैंने यीशु को मिस किया, पाकरू भी मिस किया, सब कुछ मिस किया। शिको के शागिर्दों ने बताया था उसको। हालेलुया। तुमा ने कहा आज तो नहीं मैं मिस करने वाला, आज तो संडे है, हफ्ते का पहला दिन है, आज अगर यीशु आ गया तो आज फिर मैं मिस कर दूंगा, आज मुझे जाना है। हालेलुया। वहां पर तुमा उस दिन वहां पर मौजूद था। लिखा है फिर उसने तुमा से कहा अपनी उंगली पास ला, मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तुमा ने जवाब में उससे कहा ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। तुमा ये देख के ही घबरा गया, यीशु को देख के ही उसके दिल में आ गया, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरे हाथों में उंगली डालने की, तेरी पसली में वो हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं है। तू ही खुदावंद है, तू ही खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। तू ही खुदावंद है, तू ही खुदा है, मुझे माफ कर दे, मैं यहां था नहीं पिछले संडे को। यीशु ने कहा तुमा ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा तू तो मुझे देख कर ईमान लाया है, मगर मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। अजीजों, मैं और आप आज इसी कैटेगरी में हैं जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। हालेलुया। जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। मैं और आपने ईमान रखा है कि आज हम खुदावन के घर में जाएंगे तो यीशु आएगा अपने वादे के मुताबिक।
हालेलुया। आज हमने यही ईमान रखा है कि आज सबत का दूसरा दिन है, आज हफ्ते का पहला दिन है जब हमने कायन के हाथों में जाके अपनी ऑफरिंग का हिस्सा देना है, ताकि कायन खुदावन की हुजूरी में उसको हिला सके और हम अपनी कमाई जो बाकी मांदा है उसमें से उसको खा सके। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब खुदा उनकी हुजूरी में खड़े हो जाते हैं, अपने आप को इस मेज पे लाने के लिए तैयार करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया।